I'm Mohammad Abdurrahman from Park Pure Line. So as usual, Park Pure Line का introduction कराता चलूँ. Park Pure Line is a modern and innovative concept of food quality and safety solutions. We are specialized in food safety and halal. In food safety and halal, we offer our advisory and consultancy services to food industry and other private sector that is dealing in food processing and quality assurance. We are committed to innovation, quality, cost effectiveness, and superior customer service that meets international standards of food quality assurance and system requirements. So as far as our programs are concerned that we are conducting with the industry, uh, these include several food safety awareness sessions like online and in place. Then we conduct different kinds of seminars and workshops, awareness sessions. We offer our advisory and consultancy services to food industry as well. So all the programs that we offer or that we run are conducted in collaboration. So as far as collaboration is concerned, uh, we have different collaborative partners from food industry or academia. From private sector, we have collaboration with the different private sector organizations like halal research organizations, uh, Sea Shine Group, and other private sector organizations that are directly or indirectly dealing with the consultancy and certifications in food safety and halal sector. So other than that, we also have a strategic alliance with the different educational and academic institutes like Punjab University, Minhaj University, Imperial College of Business Studies, Agriculture University Faisalabad, and University of Sargodha. These are some of the collaborators we are working with those. So this was little bit introduction about Park Pure Line. So directly we'll move towards our today's topic of training, that is how to develop a food safety plan for industrial implementation. जी, एक दफ़ा सब लोग कंफर्म कर दीजिए दोबारा से, आवाज़ आ रही है और आपको स्क्रीन शेयर हो रही है. पार्टिसिपेंट सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है इजली और स्क्रीन शेयर हो रही है. ओके जी, सबका आंसर है यस. सो वी विल कंटिन्यू. हम इस ट्रेनिंग में एज यूजुअल मतलब जैसा हमारा तरीकाकार है ट्रेनिंग का कि हम जनरल डिस्कशन करेंगे ट्रेनिंग के अंदर फूड सेफ्टी प्लान के ऊपर कि फूड इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट्स या अदर कमर्शियल सेटअप्स पे हम किस तरीके से फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल सेंस. मतलब हम किताबी बातों की बात नहीं करेंगे कि मतलब एक वो सीनिक वे में बात नहीं करेंगे कि ऐसे होता है या ऐसे होना चाहिए, बल्कि हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे जो हमारा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है या इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिकली रिक्वायरमेंट्स हैं फूड सेफ्टी के वाले से कि किस तरीके से फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो इस ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो, कोई कंसर्न हो तो आप प्लीज़ वो पूछ सकते हैं ताकि हम अपनी डिस्कशन को फ्रूटफुल बनाएं. ओके जी, फूड सेफ्टी के बारे में हम देखते हैं कि फूड सेफ्टी क्या है.
एज यू पीपल ऑलरेडी नो दैट फूड सेफ्टी क्या है कि हमने अपनी खुराक को महफूज बनाना है। किस चीज़ से महफूज बनाना है? जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस खुराक को ख़राब कर सकते हैं या उस खुराक की ख़राब होने की सूरत में कस्टमर या कंज्यूमर की हेल्थ के साथ उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इम्पेक्ट है, हम उन सभी फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं फूड सेफ्टी के दौरान, फूड सेफ्टी की एश्योरेंस के दौरान। तो जब भी इंडस्ट्री में या कमर्शियल सेटअप्स पे या रेस्टोरेंट्स में बात होती है फूड सेफ्टी की इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसके लिए बाकायदा तौर पे एक फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लानिंग की जाती है, एक मैकेनिज्म, एक तरीकाकार वज़े किया जाता है। हम उस मैकेनिज्म को यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। A food safety plan is a written guide outlining what you do to lessen the chance of someone getting sick from eating contaminated food। मतलब ये बात हो रही है कि फूड सेफ्टी का कंसर्न क्या है, अल्टीमेटली फोकस क्या है। जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को, उसकी हेल्थ के साथ कंसर्न है फूड सेफ्टी का अल्टीमेट गोल। उससे पहले फूड सेफ्टी के दौरान, मतलब फूड की सेफ्टी को इंश्योर करने के दौरान जितने भी पैरामीटर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, उन सभी को हम किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू assurance that food will be produced in wholesome and righteous way and it will not cause harm to the health of the consumer। सो हम इस पर्सपेक्टिव से आज की ट्रेनिंग को डिस्कस करेंगे, मतलब जो हमारा टॉपिक ऑफ ट्रेनिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम जब फूड सेफ्टी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसके लिए हमें बुनियादी तौर पे, मतलब आप इस तनाज़ुर में ये आज की ट्रेनिंग को देखें कि हमारे सामने एक टास्क है। हमने उस टास्क में क्या करना है कि फूड सेफ्टी को किसी इंडस्ट्री में इंश्योर करना है, फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या है कुछ बेसिक्स पे काम करना होगा, एक बेसिक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। लाइक फूड सेफ्टी प्लान कौन इसको कंडक्ट करेगा, कौन इसको श्योर करेगा, और व्हाट शुड बी डन, हमें इस प्लान के अंदर क्या करना है। नंबर थर्ड पे है हाउ शुड इट बी डन, हमने इस टास्क को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये तीन मेजर आउटलाइंस हैं हमारे पास। इन तीनों आउटलाइंस के तहत हम जो भी फूड सेफ्टी प्लान है उसको हम किसी भी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, चाहे वो बड़े स्केल की इंडस्ट्री हो। ओके सो जब हम बात करते हैं फूड सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन प्लान की, तो उसमें पहली बात आती है हु शुड डू इट, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है फूड सेफ्टी को श्योर करना या इम्प्लीमेंट करना। डेफिनेटली उसके लिए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन हैं या बेसिक कम्पिटेंसीज हैं, वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए या फूड क्वालिटी एश्योरेंस से रेलेवेंट बंदा हो, उसको फूड क्वालिटी एश्योरेंस और फूड सेफ्टी का बेसिक नॉलेज हो। अब बेसिक नॉलेज में फिर फर्दर क्या है, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनोग्राम की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कि एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया किसी भी इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ये है कि मिल्क सेफ्टी पैरामीटर्स को हमने चेकिंग बैलेंसिंग का रखना है, ठीक है, रॉ मटेरियल रिसीविंग से लेके फर्दर एंड प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन तक, ठीक है। और इस दौरान जितने भी प्रोसेसेस हैं, पैरामीटर्स हैं, जितने भी क्वालिटी एश्योरेंस और फूड सेफ्टी के पैरामीटर्स हैं, उनको हमने मतलब कंसिडर करना है। तो उसमें जो बेसिक रोल है, एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा, प्रोजेक्ट में एक ऑर्गेनोग्राम बनेगा, एक बॉस जो है इंडस्ट्री का सीईओ है या इंडस्ट्री का जो भी कंसर्न रेलेवेंट पर्सन है जो इस प्रोजेक्ट को हेड करेगा,
उसके नीचे एक ऑर्गेनोग्राम डिज़ाइन होगा। ऑर्गेनोग्राम में क्या होगा, उस प्रोजेक्ट का हेड होगा फूड सेफ्टी मैनेजर। फूड सेफ्टी मैनेजर अपनी एक फूड सेफ्टी कमेटी डिज़ाइन करेगा। फूड सेफ्टी कमेटी में क्या होगा, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करेगा, एक टीम डेवलप करेगा, उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एसओपीज़ को वो डिज़ाइन करेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑर्गेनोग्राम में कैसे मूव करती हैं, सबसे पहले एक फूड सेफ्टी मैनेजर है, फूड सेफ्टी असिस्टेंट मैनेजर है, फिर डिप्टी मैनेजर है, इसी तरीके से R&D मैनेजर होगा, इसी तरीके से वहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट होगा, फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र होगा, ठीक है। देन जनरल लेबर होगी, और मतलब ये एक मिल मिला के एक SOP ऑर्गेनोग्राम बनेगा। ऑर्गेनोग्राम में हर बंदे की, हर पर्सन की अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जिनको सभी लोग उस तरीके से फुलफिल करेंगे। इस तरीके से मतलब देखा जाएगा कि जॉब डिस्क्रिप्शंस कैसे वज़ा होंगी, वो भी जो फूड सेफ्टी टीम मैनेजर है या फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर है, वो ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करेगा, इस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शंस को वो वज़ा करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा, जिसमें एक बाकायदा ऑर्गेनोग्राम के तहत उस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए एक जो है टीम बिल्डअप की जाएगी। अब इसी टीम ने बुनियादी तौर पे इस प्रोजेक्ट को लेके चलना है, और फर्दर जितनी भी फूड सेफ्टी की इम्प्लीमेंटेशन है उनको मतलब कैरी ऑन करना है। ओके, अब जहाँ तक बात आती है कि फूड सेफ्टी टीम जो हमने डिज़ाइन की है उस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए, उसमें कॉम्पिटेंसीज और उनका कैलिबर क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड सेफ्टी मैनेजर है या डिप्टी मैनेजर है या असिस्टेंट मैनेजर है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हेड करना है, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट दे शुड बी क्वालिफाइड ऑन दी पैरामीटर्स ऑफ फूड सेफ्टी। बुनियादी तौर पे तो वो डिग्री होल्डर होने चाहिए फूड सेफ्टी या फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देन उनकी जो है ना वो कॉम्पिटेंसी इस तरीके से होनी चाहिए कि एटलीस्ट उनका सफिशेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए उस टीम को लेके चलने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर आएगा या फूड टेक्नोलॉजिस्ट आएगा, जिन्होंने उनके नीचे रहते हुए काम करना है। फिर फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र आएगा, इनकी भी बुनियादी क्वालिफिकेशन फूड सेफ्टी या फूड टेक्नोलॉजी या क्वालिटी इंश्योरेंस से रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि उनको बेसिक नो हो, उनके पास एक बाकायदा अथेंटिक वेरीफाइड डिग्री हो फूड सेफ्टी या फूड टेक्नोलॉजी की। देन उनके पास सफिशेंट नॉलेज हो, सफिशेंट नॉलेज इन दैट सेंस कि उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हों इन सभी ट्रेनिंग्स के, सभी फूड सेफ्टी के मॉड्यूल्स के ऊपर काम करने के, ठीक है। फिर उनका एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि एक्सपीरियंस बाज़ का मतलब एक डिफ़ाइन किया जाता है कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, व्हाट्सएवर। बाज़ का ना उस प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि नॉन एक्सपीरियंस बंदे भी उस पर काम कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट नेचर कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, और इस हिसाब से कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए उस रेलेवेंट टीम की उस फूड सेफ्टी प्लान को कंडक्ट करने के लिए। अब इसमें फिर ये आता है कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए सभी जो स्टाफ हायर किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज की जो ट्रेनिंग हो रही है, माइट इट बी पॉसिबल कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हों, ट्रेनीज हों, जो अपनी इंडस्ट्री के बिहाफ पे हमारे साथ आए हों, ठीक है। तो इस तरह नॉमिनेशंस भी इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉयज़ की करती है कि आप मुख्तलिफ रेलिवेंट ट्रेनिंग हासिल करें, कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, कुछ इन प्लेस ट्रेनिंग्स है। सो हमारा अदारा जो पाक प्योरलैंड वो भी इसी तरीके से ट्रेनिंग जो ऑफर करता है। मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग का हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम स्टूडेंट्स, एकेडेमिया और इंडस्ट्री के जो स्टाफ हैं उनको मुख्तलिफ फूड सेफ्टी मॉड्यूल्स पे ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। तो बुनियादी थीम क्या है, कैपेसिटी बिल्डअप, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे तो डेफिनेटली वो बंदा उस प्रोजेक्ट में एफिशिएंटली अपनी सर्विस दे सकेगा। व्हाट शुड बी डन, अब करना क्या है, ये चीज़ तो डिफाइन होगी कि किसने क्या करना है। अब असल मामला है कि करना क्या है।
करना क्या है, हमने एक प्लान डिज़ाइन करना है जिसमें मुख्तलिफ टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखा जाएगा कि किस प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें फिर हैसअप की प्लानिंग होगी। हैसअप ही असल में फूड सेफ्टी का एक बेसिक मॉड्यूल है, फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लानिंग हमें देता है। तो जब हम डॉक्यूमेंट्स में आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में हर बंदे के मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। जैसे एक जो मैनेजर है या सीईओ है, सीईओ का अपना एक एज अ बॉस रोल है, ठीक है। उसने पॉलिसी वज़ा करनी है, उसने एक बेसिक रोड मैप देना है काम करने के लिए, ठीक है। उस रोड मैप के तहत पॉलिसी डिज़ाइन होगी, ठीक है। फिर उस पॉलिसी के तहत मतलब फूड सेफ्टी पॉलिसी डिज़ाइन होगी कि पॉलिसी में करना क्या है, हमारा काम क्या होगा, हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। पॉलिसी बुनियादी तौर पे एक रोड मैप होगा उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। पॉलिसी के अंदर उसमें फिर जो मैनेजर्स होंगे, जो सुपरवाइजरी रोल जिनका होगा, वो सभी लोग मिल बैठ के उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली क्वालिटी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क डिज़ाइन करेंगे। क्वालिटी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क में क्या है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स, मुख्तलिफ SOPs, मुख्तलिफ काम करने के तरीक़ाकार, जॉब डिस्क्रिप्शंस को वज़ा किया जाएगा। हाउ यू डू इट, कि मतलब उस प्रोजेक्ट में रहते हुए हमने कौन सा काम कैसे परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है फूड सेफ्टी में, फूड सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन में रॉ मटेरियल रिसीविंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लैब में क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग पैरामीटर्स प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसी तरह प्रोडक्शन के पैरामीटर्स हैं, प्रोडक्शन के प्रोसीजर्स हैं कि उस प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे फूड सेफ्टी को मेंटेन करना है। इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस लैब में मुख्तलिफ लैब्स होती हैं, रॉ मटेरियल रिसीविंग या जिसको हम रिसेप्शन लैब बोलते हैं। मिल्क के केस में अगर हम देखें तो रिसेप्शन लैब होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इन लाइन या ऑनलाइन उसको लैब भी बोलते हैं, जो प्रोसेसिंग के दौरान मुख्तलिफ सैंपल्स लेके जिनको हम कंडक्ट करते हैं, वो लैब इस्टेब्लिश होगी। उसके बाद फिर क्वालिटी इंश्योरेंस एक जनरल लैब डिज़ाइन होगी जिसमें तमाम किस्म के पैरामीटर्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर R&D लैब डिज़ाइन होगी। R&D में नई रेसिपी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम होगा। देन फिर माइक्रोबायोलॉजी लैब वहाँ पे इस्टेब्लिश होगी। माइक्रोबायोलॉजी लैब को रन करने के लिए मुख्तलिफ SOPs, प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम प्रोटोकॉल्स वज़ा करने हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड। फिर जो हमारी प्रोडक्शन के बाद पैकेजिंग में प्रोडक्ट आ जाती है, पैकेजिंग के लिए प्रोसीजर्स और SOPs भी वज़ा होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। सो पैकेजिंग, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट डिस्पैच है, फिर वेयर हाउसिंग के लिए SOPs और JD's डिस्क्रिप्शन जो ना वो डिफाइन की जाएंगी। फिर प्रोडक्ट की जो है डिस्पैच और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए SOPs वजह किए जाएंगे ओइंग टू दी सब्जेक्ट अंडर आवर स्टडी दैट इज़ फूड सेफ्टी प्लान डेवलपमेंट। मतलब हर स्टेप पे हमने फूड सेफ्टी के प्लान को डेवलप करने के लिए प्रोसीजर्स और SOPs डिफ़ाइन करने हैं कि कौन सा काम किस तरीके से सारा अंजाम देना है ताकि कंटेमिनेशन कम से कम हो, ठीक है। इसमें फिर प्रोसीजर्स में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात भी आ जाती है, GMPs, और इसी तरीके से जो है जो ISO या FSSC 22000 के जितने भी पैरामीटर्स हैं, फिर प्री रिक्वेस्ट प्रोग्राम्स हैं, वो भी इसी में सारे प्रोसीजर्स के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास एक रोड मैप हो जिनको फॉलो करते हुए हर स्टेज पे हम प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैरामीटर्स तमाम को हम फॉलो कर सकें। फिर रिकॉर्ड्स में हु डिड व्हाट व्हेन, मतलब किसने क्या कब करना है, मतलब क्या रिकॉर्ड कीपिंग फूड सेफ्टी प्लान एश्योरेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हर स्टेप पे, हर स्टेज पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है विद रिस्पेक्ट टू फूड सेफ्टी, उसको हमने रिकॉर्ड करना है, उसको उसका एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है ताकि हम कल को जब उस प्रोजेक्ट को रीवैल्यूएट करेंगे या रीवैल्यूएशन के अलावा भी जब वो सर्टिफिकेशन में जाएगा वो स्कीम, या उसको हमने अपने रिकॉर्ड के लिए सारी चीज़ों को मतलब राइटअप में लेके आना ताकि हम फ्यूचर में किसी किस्म की कंसर्न हो, कोई क्वेरी हो, हम उसको अकॉर्डिंगली विद विद रिटन रिकॉर्ड हम उसको टैली कर सकें,
ठीक है। फॉर एग्जांपल कल को कोई क्वेरी आती है कि जी आपकी प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में उसका बिहेवियर ये है, उसका रिस्पांस अच्छा नहीं है, कलर फेड हो गया, व्हाट्स एवर जो भी फूड सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, या कंज्यूमर ने उसको इस्तेमाल किए तो उसको साइड इफ़ेक्ट हो गया, उन सारी चीज़ों को डील करने के लिए फिर हम अपने रिकॉर्ड से सहारा लेंगे। ओके, उसके बाद मैप है। मैप में भी हम जो ना SOPs वज़ा करते हैं कि मतलब किन SOPs के तहत कौन सा प्रोसीजर हमने अडॉप्ट करना है और किस तरीके से मुख्तलिफ जो मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो असम्बलीज़ हैं, जो प्रोडक्शन मशीनरी है, उसको किस तरीके से कैसे हमने डिज़ाइन करना है, कहाँ पे क्या इंस्टॉलेशन ज़रा होनी है, इससे रिलेटेड प्रोसीजर्स या SOPs वज़ा किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेयरी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के पम्प्स यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ जो प्रोडक्शन जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, हर चीज़ का हमने ये मतलब एक डिज़ाइन करना है सेटअप के कौन सी चीज़ को कैसे कहाँ पे इंस्टॉल करना है ताकि कम से कम फूड सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न्स हमारे सामने आए। ठीक है। देन फर्दर फ्लो चार्ट हाउ इट वर्क्स। अब मशीनरी को या इक्विपमेंट्स या मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस को वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक पेपर वर्क होना चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल रिसीविंग से लेके फाइनल प्रोडक्ट डिस्पैच तक, या उसके बाद वेयर हाउसिंग भी है, सारी चीज़ें वो इसी में इंक्लूडेड हैं कि हमारे पास एक रोड मैप हो, उस रोड मैप के तहत हमने सारी चीज़ें वहाँ पे इंस्टॉल करनी हैं। ओके जी, आगे हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी डन, उसमें अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर आगे रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद हम हैसब की बात करेंगे। रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाती हैं, मतलब फूड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसी सब्जेक्ट के अंदर स्टडी होंगे, लाइक वर्कर हेल्थ एंड हाइजीन है, ट्रेनिंग है, पेस्ट कंट्रोल, सैनिटेशन, फैसिलिटीज़, वाटर रिकॉल, या इसके अलावा और भी कई चीज़ें होंगी जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कर हेल्थ एंड हाइजीन की जब बात करते हैं तो इसमें ख़ास तौर पे एक चीज़ ये देखने वाली है कि जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है उसकी सेहत, उसकी सफाई सुथराई, उसके पैरामीटर्स, उसकी पर्सनल हाइजीन के पैरामीटर्स क्या हैं, किस तरीके से उन सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं वर्कर हेल्थ एंड हाइजीन में। मतलब स्टाफ को कोई भी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए जो आगे फर्दर ट्रांसफ़र हो सके या जो बाद में फूड सेफ्टी इश्यूज़ का बायस बन सके। ठीक है। इसी तरह वर्कर जो काम कर रहा है उसका हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट वो क्लियर होना चाहिए, मतलब इसमें कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई वायरल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई स्किन एलर्जी, कोई किसी किस्म का कोई ऐसी डिजीज़ नहीं हो जो आगे फर्दर ट्रांसफरेबल हो किसी प्रोडक्ट को या किसी स्टाफ को। ठीक है। इसी तरह जो है वर्कर्स का काम करने का तरीक़ाकार वो भी वज़ा करना है, उसमें भी सारी चीज़ों को हमने देखना है कि पर्सनल हाइजीन या उसमें जो जनरल वर्किंग बिहेवियर है उस स्टाफ का वो कैसा होना चाहिए, या इससे पहले हमने वर्कर्स को तमाम इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह देनी है ताकि उनको पर्सनल हाइजीन का पता हो, अपनी हेल्थ के मतलब पता हो, अपनी हाइजीन और सफाई सुथराई के मतलब सारी चीज़ों का उन्हें इल्म हो। अब ये मैं आपको एक जो ना वो ट्रेनिंग सॉरी यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड स्लाइड्स में दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें मेंशन है कि किस तरीके से हमने स्टाफ की हाइजीन को मेंटेन करना है। ओके, यहाँ पे एक स्लाइड में शो कराता हूँ आपको। जी, उर्दू में है ये स्लाइड। इसको जस्ट मकसद ये है कि हम चीज़ों को डिस्कशन इजी वे में हम कर सकें। तो ये स्लाइड शो हो रही है आपको, इसमें कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनकी बात हो रही है, जैसे पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है, हिफ्ज़ान सेहत किसे कहते हैं, या हाइजीन मतलब ऐसे अमल जिन या आदात जिनसे सेहत को बरकरार रखा जा सकता है, जिसमें सफाई और शख्सी सफाई शामिल है, मतलब पर्सनल हाइजीन शामिल है।
इसको हम हेल्थ एंड हाइजीन बोलते हैं। फिर इस तरह ग़िज़ाई जाने से क्या है, फूड हाइजीन, ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी सरगर्मियाँ जिनसे हम जो बंदा काम कर रहा है वो उसकी सेहत और जिस चीज़ से वो डील कर रहा है उसकी सेफ्टी को हम मद्देनज़र खातिर रखें, इसको हम पर्सनल हाइजीन में लेते हैं। जी, ये डायग्राम जो ना आपको शो हो रही है, इसमें मतलब दिखाया गया पर्सनल हाइजीन के हवाले से दो पिक्चर्स हैं। एक ब्लू कलर में है साहब और एक वाइट कोट में है, वेल ड्रेस्ड हैं। दूसरे जो ना उनकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, उनका मतलब ओवरऑल जो हाइजीन से रिलेटेड मामला हैं, उनकी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्बिंग हैं। लाइक उन्होंने हाथ में घड़ी पहनी हुई है, उनके बाल नहीं प्रॉपरली, उन्होंने इयररिंग्स पहने हुए हैं या उनके शूज़ वो ओपन हैं, उनकी ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं है, उनके बाजू अनकवर्ड हैं। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वेल ड्रेस्ड हैं, वेल सूटेड बुटेड हैं, इसी तरह उन्होंने सर को ढांपा हुआ है। ठीक है, तो दोनों की वज़ाकता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो व्हाट शुड बी कंसिडर्ड that the person who is dealing with the food safety plan, he or she should be well managed from personal hygiene point of view। तो काम करने के लिए जो भी उसकी अपनी ज़ाती सफाई सुथराई है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि वो अपनी ज़ात से जिस प्रोडक्ट के साथ वो डील करता है उसमें किसी किस्म की कंटेमिनेशन का बायस ना बन सके। ठीक है, अब जो पर्सनल हाइजीन के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसमें ये है कि एक तो उस बंदे की सेहत अच्छी हो, कोई नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी छींकें वगैरह कोई ऐसा इशू ना हो, जैसा कि आजकल का मौसम चल रहा है, इस मौसम में अक्सर ये इशू बन जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या उनकी प्रॉपर जो है ना मेडिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। वैसे तो फूड सेफ्टी का प्रिंसिपल ये कहता है कि हर 6 माह बाद वर्कर की मेडिकल स्क्रीनिंग हो विद मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, लेकिन इससे हट के भी मतलब जो वेदर कंडीशन है उनके अकॉर्डिंगली इनकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। अगर कोई बंदा इस चीज़ में मुब्तला हो, नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी या कम्युनिकेबल डिजीज़, तो उनकी प्रॉपर मेडिकेशन होनी चाहिए या वक्ती तौर पे उसको उस प्रोजेक्ट से कल कर दिया जाए, किसी और जगह पे उसको डिप्लॉय कर दिया जाए। तो इस तरह का मैकेनिज़्म अडॉप्ट करना चाहिए। इसी तरह पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड जो अदर पैरामीटर्स हैं, लाइक उनकी यूनिफॉर्म अच्छी हो, उनकी ज़ाती सफाई सुथराई इस लेवल की हो कि कोई भी जो है ना वो कंटेमिनेशन वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र ना कर सकें, क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड करें। ठीक है, देन काम करने के दौरान उनका खाने पीने का जो है ना वो मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए कि ड्यूरिंग वर्किंग वो कोई चीज़ जैसे सिगरेट है, तंबाकू नोशी है, कोई पान शान कोई इस तरह की चीज़ें वो ना एक्टिविटीज़ ऐसी ना करें। खाने के टाइम पे उनको अलहदा से एक टाइम दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वर्कर की हाइजीन क्या है। जैसे उसने ग्लव्स पहने हैं, मास्क पहना है, टोपी पहनी है, उसने यूनिफॉर्म पहनी है, तो वो क्या है, प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड, वेल इक्विप्ड होना चाहिए। कुछ लोग साउंड के मतलब कह रहे हैं साउंड क्लियर नहीं है। आप प्लीज़ एक दफ़ा अपनी हैंड फ्री को रिफ्रेश करें, बाकी सब लोगों को जो ना आवाज़ सुनाई दे रही है। जिन लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है अपनी प्लीज़ हैंड फ्री रिफ्रेश करें। मैंने अपने पार्ट पे अपनी सारी चीज़ें ओके दोबारा से की हैं। ओके, काम के दौरान जैसे अक्सर लोगों को आदत होती है मुंह में उंगली डाल ली, नाखून चबाने शुरू कर दिए, खांसना छींकना शुरू कर दिया, सिगरेट पीनी शुरू कर दी, या कोई चीज़ दरमियान से आंख बचा के टेस्ट करनी शुरू कर दी, दैट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, उसके बाद हाथ धोने का तरीकाकार है, वो कैसे अडॉप्ट करना है। लाइक हाथों को गर्म नीम गर्म पानी से गीला करें, हाथों पे लिक्विड सोप लगाएं,
नाखूनों को साफ करें, हाथों को रब करें 30 सेकंड्स के लिए पानी से, फिर अच्छी तरह धो लें उनको। लिक्विड हैंड वॉश सोप होना चाहिए। अब डायग्राम में हैंड के ऊपर जितने भी ये डॉट्स दिखाए गए हैं रेड कलर के, इनका मकसद ये है कि ये हमारे हाथ के ऊपर पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे मैक्सिमम कंटेमिनेशन रह जाती है। ठीक है, इस चीज़ को हमने स्पेशल फोकस के साथ हमें देखना है। इसी ज़मरे में मेरे पास एक शॉर्ट सा एक क्लिप है, वो भी मैं आपको मतलब दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, सो यहाँ तक हमने बात की है पर्सनल हाइजीन और हैंड वॉशिंग या हैंड सैनिटाइजेशन की। ठीक है, हैंड सैनिटाइजेशन में खास तौर पे एक चीज़ देखने वाली कि हाथ धोने के बाद आपने एक पब्लिक टॉवल के साथ हाथ साफ नहीं करने, ताकि वहाँ से रिकंटेमिनेशन ना हो सके। ठीक है, हाउएवर आपके पास एक सिंगल यूज़ टॉवल होना चाहिए या टिशू होना चाहिए। टिशू के साथ आप हाथों को टैप करें, गीले हाथों को, इसके बाद फिर सैनिटाइज़र से हाथों को सैनिटाइज करें, देन आप काम के ऊपर जाएं। तो ये पर्सनल हाइजीन के पैरामीटर्स हैं, इन सभी को एज इट इज़ फॉलो करना निहायत ज़रूरी है। ओके, देन पेस्ट कंट्रोल की बात आती है। पेस्ट कंट्रोल में देखा जाता है कि कौन कौन से पेस्ट्स वहाँ पे इन्वेड करते हैं आपके उस विसिनिटी पे, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। जी, पेस्ट्स जो भी ऐसे जानदार, ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसी जो मखलूक जो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के दौरान अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज सर अंजाम देती हैं, लाइक वो खुराक डेफिनेटली खाना ही उनके लिए एक अट्रैक्शन है, खाने पे वो आते हैं। तो जहाँ पे भी स्पाइस फ्राई का मामला गड़बड़ होगा, वहाँ पे पेस्ट्स आएंगे, लाजमी तौर पे आएंगे, जिनमें रैट्स हैं, कॉकरोचेज हैं, फ्लीज हैं, फ्लाइज हैं, जनरल फ्लाइज हैं, एंट्स हैं, मॉस्किटोज हैं, या अदर लाइक लिजर्ड्स हैं। तो इस तरह के इंसेक्ट पेस्ट, क्रॉलिंग इंसेक्ट पेस्ट वहाँ पे इस एरिया में इन्वेड करते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए भी हमारे पास बाकायदा एक SOP होता है, एक मैकेनिज़्म होता है, जिसमें हम IPM जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं उन पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। लाइक फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, फिर हम वहाँ पे मुख्तलिफ रैट्स को ट्रैप्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इन स्लाइड्स में दिखाया गया है आगे फर्दर कि कौन कौन से किस तरीके से ट्रैप्स जो ना वो ये ट्रैप है रैट्स को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह लिजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक गन या बैटिंग एक्शन होता है, वो गन के थ्रू लिजर्ड को कैप्चर करते हैं। ठीक है, फिर मॉस्किटोज या फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे विसिनिटी में जालियाँ लगी होनी चाहिए, खिड़कियों के बाहर दरवाजे ओपन नहीं होने चाहिए, दरवाज़ों के नीचे इतनी स्पेस नहीं होनी चाहिए कि वहाँ से वो चीज़ें इन्वेड कर सकें, या दरवाज़ा हम वक्त ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह एयर कर्टन्स इंस्टॉल किए जाते हैं। कोई भी बंदा जब गुजरता है तो वो हाई प्रेशर एयर, वो एक इक्विपमेंट मारता है जिसको हम एयर कर्टन बोलते हैं, उससे भी कोई मक्खी या मच्छर कोई इस तरह की चीज़ें वो अंदर एंटर नहीं हो सकती। सो मकसद इसी तरह ये आपने देखा होगा मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इंसेक्टोक्यूटर या UV लाइट इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होते हैं, जिनमें नीली लाइट होती है, अंदर इलेक्ट्रिक शॉक होता है। जब भी वो नीली लाइट से मक्खी वगैरह उस पर अट्रैक्ट होती है, उस पर बैठने की कोशिश करती है, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक से वो किल हो जाती है। सो ऐसी चीज़ें भी हमें इंस्टॉल करनी है। फिर चिपकने वाले शिकंजे लाइक जिनको हम ग्लू बैंड्स बोलते हैं, ये भी इंट्रोड्यूस करवाने हैं, लाइक कॉकरोचेज वगैरह के लिए। वो उन पर क्रॉल करेंगे तो ऊपर चिपक जाएंगे। फिर इनको कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारा IPM का प्रोटोकॉल हमें बताता है कि कौन से गैजेट्स कहाँ पे किस तरीके से किस स्टेज पे अप्लाई करने हैं, उनकी मैपिंग कैसे करनी है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने जो ना वो कवर किया है कि किस तरीके से हमने फूड सेफ्टी प्लान जो ना वो डिज़ाइन करना है। पेस्ट कंट्रोल तक हमने यहाँ तक कवर किया है। पेस्ट कंट्रोल के बाद बात आती है सैनिटेशन की। सैनिटेशन में दो चीज़ों की डिस्कशन होती है। एक तो ये है कि जो पर्सनल हाइजीन का एक पैरामीटर है जिसमें हैंड सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, या ओवरऑल जो वर्कर या स्टाफ काम कर रहा है वहाँ पे उसकी जो पर्सनल हाइजीन का पैरामीटर, वो भी यहाँ पे डिस्कशन होगी इस चीज़ की। और उसके अलावा जो फैसिलिटी जहाँ पे काम किया जा रहा है, जो
जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेसिंग पैरामीटर्स कंडक्ट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, जो फ्लोरिंग है, जो प्रोडक्शन हॉल है, उसकी सैनिटेशन की भी बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह हम फैसिलिटीज़ की भी बात करेंगे। फैसिलिटीज़ में सफाई सुथराई का मामला क्या होगा, किस तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलना है। सो इस ज़मन में एक स्लाइड में शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ, जिसमें सैनिटेशन की बात होगी, जिसमें जनरल जो है, जिसको हम सफाई सुथराई और जरासीम कशी के तहत हम इसको हम लेते हैं। तो इसमें ऐसे है कि सैनिटेशन या सफाई सुथराई के लिए एक तो जो उधर का इन्वायरमेंट है जहाँ पे वर्किंग प्रोसेसिंग पैरामीटर सारे कंडक्ट हो रहे हैं, वो एक्सीलेंट होना चाहिए। वहाँ पे किसी किस्म की कोई आलूदगी नहीं होनी चाहिए। या उसके अलावा हमारे पास एक जो सैनिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें हम रिटर्न प्रोटोकॉल और एसओपीज़ को हम फॉलो कर सकें। तो इस नाज़र में देखें तो हमें एक शेड्यूल मुरतब करना है सैनिटेशन के लिए। जी, इसको हम सैनिटेशन, सफाई सुथराई और जरासीम कुशी बोलते हैं। कि मतलब जिस एरिया में प्रोडक्शन प्रोसेसिंग करनी है, वहाँ का इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब मट्टी से पाक हो, बदबू से पाक हो, चिकनाई से पाक हो, कोई रस्टिंग की कोई इशू ना हो। मतलब जैसे मशीनरी इक्विपमेंट है, उसकी सैनिटेशन भी इसी में आ जाएगी। इसी तरह से जो फ्लोरिंग है, जो वाल्स हैं, जो फैसिलिटी जहाँ फैसिलिटी पे हम काम कर रहे हैं, उसकी सफाई सफाई वो भी इसी जगह, इसी जो ना वो डिस्कशन में आ जाएगी। अच्छा, इसमें जो ना एक हम डायरेक्टली एक शेड्यूल की बात करते हैं, सफाई का शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं। कि आपको जिस जगह, मतलब आप काम कर रहे हैं, या जो जिस जगह पे आपका प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ पे आपने एक शेड्यूल मरतब करना है सफाई सुथराई का। मतलब उसमें बुनियादी बात ये है कि जब भी काम करना है, काम शुरू करने से पहले, ठीक है, काम करने के दौरान चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। जो भी मतलब कोई काम के दौरान कोई ऐसी कंटेमिनेशन अगर होती है, तो उसको साथ साथ कवर अप करना है। इसी तरीके से काम करने के बाद जो शिफ्ट को जब मतलब नेक्स्ट कन्वर्जन में आती है, शिफ्ट शिफ्ट एंड होने से पहले आपने चीज़ों को असली हालत में लेके आना है। मतलब जो है ना, सफाई करने की ज़रूरत कब, कैसे और कौन करेगा। डेफिनेटली इसके लिए क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के लिए, सैनिटेशन के लिए है ना, वो सैनिटेशन स्टाफ होता है जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ये सारा टास्क परफॉर्म करना है। हाउएवर ये शेड्यूल जो भी मैनेजर है या सुपरवाइज़र है, उसके साइन और स्टैम्प के साथ इसको री वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे फैसिलिटीज़ की बात होती है। फैसिलिटीज़ में देखना है कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हॉल है, जिसमें हम जनरल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। लाइक वहाँ पे एरिया में इक्विपमेंट कहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, इक्विपमेंट की पोजीशनिंग क्या होगी, इक्विपमेंट जहाँ पे वर्किंग हो रही है वहाँ पे फ्लोरिंग कैसी है, दीवारें कैसी हैं, उनकी छतें कैसी हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसी तरह वहाँ पे लाइटिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइटिंग असम्बलीज कैसी हैं, बल्ब है, ट्यूब लाइट्स हैं या अदर लाइट्स हैं, वो कैसी हैं। उनके ऊपर, लाइट्स के ऊपर एक कवर चढ़ा होना चाहिए, ताकि मतलब जो उसका लाइट का शीशा है वो टूट के इसकी ब्रेकेज के केस में वो नीचे किसी प्रोडक्ट के अंदर ना गिरे, कंटेमिनेट ना करे, जालीनुमा कपड़ा ऊपर लगा हो, ताकि उसकी सफाई सुथराई, उसके ऊपर से जो डस्ट डर्ट वगैरह उसको साफ करना इजी हो। इसी तरीके से फ्लोर की सफाई सुथराई, फ्लोर में ऐसे क्रैक्स नहीं होने चाहिए, दीवारों में क्रैक्स नहीं होने चाहिए, दीवारें पेंटेड नहीं होनी चाहिए ताकि उनका पेंट वगैरह ना गिर सके नीचे। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस जो है ना फैसिलिटीज से रिलेटेड हैं। देन वहाँ पे मतलब टायर्स या मार्बल ऐसा होना चाहिए कि मार्बल्स में क्रैक्स ना हों, ताकि फॉर एग्जाम्पल हम डेयरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे जब वाशिंग क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे की जाती है, इसलिए फ्लोर के अंदर पानी खड़ा ना रहे, ठीक है। इजीली क्लीनेबल फ्लोर होना चाहिए, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सेल्फ ड्रेनिंग ड्रेनेज होना चाहिए, मतलब ये कि पानी खुद से वहाँ से ड्रेन हो जाए, पोजीशनिंग उसकी ड्रेनेज की ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि प्रेशर के साथ आप उसको ड्रेन को आगे पानी को जो ना वो ओज आउट करें। तो ये सारी कंसिडरेशन हैं जिनको हमने फोकस करना है। इसमें और भी कई चीज़ें आ जाती हैं, लाइक दीवारें हैं तो दीवारों के जो जंक्शन हैं वो कॉर्नर्ड नहीं होनी चाहिए बल्कि राउंड जंक्शन होने चाहिए। उसका मकसद क्या है, एक तो वहाँ पे कॉर्नर पे जैसे अक्सर आपने देखा डस्ट एंड डर्ट जमा हो जाती है, या इसके अलावा मुख्तलिफ कॉबवेब्स जाले वाला वहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी राउंड कॉर्नर राउंड शेप्ड एजेस होने चाहिए, बट कॉर्नर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपका फ्लोर है, फ्लोर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, वहाँ पे कॉबवेब्स ना हो, वहाँ पे इंसेक्ट्स पेस्ट इन्वेड करने की कोई भी किसी किस्म की एंट्री पॉइंट्स ना हो, छुपने के लिए कोई जगह ना हो, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और लाइटिंग की अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए। मतलब इससे सारा क्या होगा, कुछ चीज़ें डायरेक्टली या कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं फूड सेफ्टी से, जो कंसर्न है जिन चीज़ों के, ठीक है। देन बात आती है जो वहाँ पे यूटिलिटीज़ हैं, लाइक एयर है, वाटर है, स्टीम है, ठीक है। उनकी क्वालिटी को भी देखना है, वाटर पोर्टेबल होना चाहिए, उसके टीडीएस अंडर कंट्रोलिंग लिमिट्स होने चाहिए, लाइक 150 टू 300 और 350 इस रेंज में टीडीएस होने चाहिए पानी के, ठीक है। देन जो एयर है वो भी प्योर क्वालिटी की हो, एयर में किसी किस्म का कोई ऑर्डर ना हो, कोई बैड स्मेल्स ना हो। स्टीम है वो भी प्योर होनी चाहिए, कोई किसी किस्म का बैड स्मेल या ऑर्डर नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिकॉल की बात आती है। रिकॉल में ये होता है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जैसे मैंने पहले बात की कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए कि जब भी आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाए, अगर अल्लाह ना करे मार्केट में किसी किस्म का कोई मतलब वो इस तरह का बिहेव कर रही है, लाइक इसका कलर फेड हो गया प्रोडक्ट का, या वो कंज्यूमर से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रही है, या मतलब इस तरह का कोई इसका इम्पैक्ट है, कंज्यूमर कंप्लेंट्स आती हैं उस प्रोडक्ट की, जो कस्टमर के साथ उसका बिहेवियर, उससे मतलब कंज्यूमर कंप्लेंट्स आती हैं, उनको आप अच्छे तरीके से डील करें और उसी बेस पे आप R&D करें। अब डॉक्यूमेंटेशन हमें इस चीज़ के बारे में बताएगी कि आपकी प्रोडक्ट जो है, अगर उसका बिहेव अच्छा नहीं है मार्केट में कंज्यूमर के साथ, तो आप उस प्रोडक्ट को रिकॉल कर सकते हैं, आप उसकी सोर्सिंग कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट किस चैनल के ज़रिए किस जगह पे गई है, ताकि हम उसको वहाँ से मार्केट से विड्रॉ कर सकें, उठवा सकें। इन दैट केस कि अगर कोई किसी किस्म का प्रोडक्ट का साइड इफ़ेक्ट है, या प्रोडक्ट इट सेल्फ स्पॉइल हो गई है, या और कोई भी इस तरह के कंज्यूमर रिलेटेड मामला आते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इसको हम रिकॉल में कंसिडर करते हैं। ओके, वर्कर हेल्थ और हाइजीन के मतलब हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, इलनेस और इंजरीज, और इस तरह हाइजीन में फूड, क्लॉथ्स, हैंड वाशिंग से रिलेटेड आपको मैं यहाँ पे एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, जिसको आप ज़रा अपनी गौर से देखिए कि उसमें दिखाया गया है कि हाथ धोने का क्या प्रॉपर तरीकाकार है। जैसे कि आजकल कोरोना के मामलात हैं, इस केस में भी हमें हाथ धोने का तरीकाकार प्रॉपरली पता होना चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट अपनी ज़ात से रिलेटेड जो जुड़े हुए मामलात हैं, अपनी सेहत से रिलेटेड मामलात हैं, उनको एटलीस्ट हम बेहतर कर सकें। हाउएवर फूड सेफ्टी में पर्सनल हाइजीन के अंदर जब हम बात करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास हमें इल्म होना चाहिए कि हाथ कैसे धोने हैं, हैंड वाशिंग कैसे करनी है। उसके लिए हमारे पास एक वीडियो है, वो मैं वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसको प्लीज़ आप गौर से देखिएगा। जी, ये वीडियो है, इसको आप गौर से देखिएगा कि हाथ कैसे धोने हैं और कितनी देर के लिए धोने हैं। सारा प्रोटोकॉल और प्रोसीजर इसमें आप देख सकते हैं वीडियो में। एटलीस्ट 20 और 30 सेकंड हाथों को सोप के साथ रब करना, और ख़ास तौर पे ये है कि सोप हमारे पास लिक्विड
हैंड वॉशिंग सोप होना चाहिए, रादर दैन के जो वो टिक्की वाला साबुन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी क्रॉस कंटेमिनेशन का बायस बन सकता है। फॉर एग्जांपल वॉशरूम के बाहर रखा हुआ है तो बार बार वर्कर्स उसी साबुन से जब रजू करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जो ना वो क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है। 12 स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के। स्टेप 3 में हैंड्स को रब करना है, पाम टू पाम, और इस तरह हाथों की बैक साइड को पाम के साथ भी रब करना है, ठीक है। स्टेप 4 में फिंगर्स को जंक्शन फिंगर्स के जंक्शन को भी रब करना है, अंदर से इंटरलॉक्ड वे में भी इनको रब करना है फिंगर्स को आपस में। ये आप तरीकाकार देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने फिंगर्स को आपस में रब करना है, ताकि हाथ का कोई भी ऐसा हिस्सा ना बचे जिसको हम धोए बगैर छोड़ दें। जैसे कि पिछली डायग्राम में दिखाया था कि हाथ के कुछ ऐसे पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जिनको हम धोए बगैर अक्सर छोड़ देते हैं, और जो कि पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे जो है ना माइक्रोब्स या जर्म्स या डस्ट डर्ट वगैरह रह जाती है। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों को आपस में मला जा रहा है, हर एरिया को, हर हिस्से को। फिर उसके बाद प्रॉपरली रिंजिंग करनी, वॉशिंग करनी, इस तरीके से वॉशिंग करनी कि हाथों के ऊपर जो लिक्विड सोप है वो उसके बाकियात ना रह जाएं। अब ये देखें जो ना टैप को बंद करने का क्या तरीका कर है। ऐसे नहीं कि आपने हाथ धो के गंदे हाथों से जो टैप खोली थी उसी को हम बंद हाथों से कर रहे हैं, उससे ये क्या होगा कि रिकंटेमिनेशन हो जाएगी। अदर हाउएवर हमने मतलब हाथ की जो कलाई है, सॉरी जो कोहनी है, कोहनी के साथ हमने उसको टैप को बंद करना है, और ये 30 सेकंड तक हमने हाथों को रब करना है, धोना है, ताकि अच्छे तरीके से जर्म्स और माइक्रोब्स वहाँ से निकल जाएं। सो that is a very comprehensive video that has been shown here. So I hope so कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंजरीज एंड इलनेस। अब ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पर्सनल हाइजीन में कि इलनेस और इंजरी के केस में कैसे वर्कर्स को कॉल करेंगे, कैसे उनके हाइजीन के पैरामीटर्स हैं, ज्वेलरी हैं, वॉचेज हैं, इयर रिंग्स हैं, हेयर नेट्स, बेड नेट्स, और उनकी स्मोकिंग, ये वो इस तरह के सारे मामला को कैसे डील करना है, ठीक है। ये हैंड वॉशिंग के प्रोसीजर्स और पैरामीटर्स हैं। ये हैंड वॉशिंग का तरीकाकार दिखा बताया गया है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसको आप फॉलो करें इसी तरीके से। जो वीडियो है वो आपको इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर कर देंगे वीडियो को, ताकि आप इसको खुद से एक दफ़ा अच्छी तरीके से देख सकें। ओके, ट्रेनिंग और कम्पिटेंसी की बात पहले भी हमने की है कि वर्कर और स्टाफ और जो वहाँ पे जो लेबर डिप्लॉय है उसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है। लाइक एक न्यू हायरिंग की है इस प्रोजेक्ट के लिए आपने, तो क्या है उसमें आपने उनको एक नए सिरे से अपने रेलेवेंट फूड सेफ्टी का प्रोजेक्ट है उससे रेलेवेंट आपने ट्रेनिंग्स देनी है। ट्रेनिंग्स आप खुद से भी दे सकते हैं अगर आपकी कम्पिटेंसी है, और आप किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से भी रब्ता कर सकते हैं, लाइक जैसे पाक प्योर लाइन है। हम भी इंडस्ट्रियल स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स और प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स के ऊपर, ठीक है। देन न्यू हायरिंग है या बिगनिंग ऑफ सीजन है या बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक हैसअप का प्रोजेक्ट हमने कैरी ऑन करना है, तो उसके लिए हमें हैसअप की इंटरनल ऑडिटिंग की ट्रेनिंग उसको दिलवानी ज़रूरी चाहिए। फिर उसकी हैसअप से रिलेटेड रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स हैं, बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, वो दिलवानी है। इसी तरीके से फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं, वो दिलवानी है। देन फूड सेफ्टी जनरल ट्रेनिंग है, जैसे आज की ट्रेनिंग है हैंड वॉशिंग की ट्रेनिंग देनी है, उसे पर्सनल हाइजीन की ट्रेनिंग देनी,
या और जो भी रेलेवेंट ट्रेनिंग्स हैं वो सभी देनी है। अब ट्रेनिंग कैसे देनी है, वो वीडियो लेक्चर या डेमोन्स्ट्रेशन जनरल होनी चाहिए उसमें। जो पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पाक प्योर लाइन है, या इसके अलावा ऑनलाइन या इन प्लेस ट्रेनिंग्स वो दी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको फॉलो करना है। पेस्ट कंट्रोल के एक्सक्यूज मी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, ये आपकी स्क्रीन पॉज्ड है फॉर द पास्ट 15 मिनट्स। हम बस ये फोल्डर की स्क्रीन देख रहे हैं, हमने हैंड वॉशिंग वगैरह कुछ भी टेक्निक्स नहीं देखे। आप अपनी सॉरी स्क्रीन अनपॉज सॉरी कर सकते हैं मैं प्लीज? जी अब प्लीज बताइए, अब आपको शेयर हो रही स्क्रीन? अब नजर आ रहा है, क्योंकि फॉर द पास्ट 15 मिनट्स वी आर नॉट एबल टू सी सॉरी एनीथिंग सॉरी, मैं दोबारा से वीडियो शेयर एल्स। करता हूँ आपके साथ हैंड वॉशिंग की, इसको आप प्लीज देखिएगा। नो वरीज, नो वरीज। जी अब आपको हैंड वॉशिंग स्टेप्स की वीडियो शेयर हो रही? अच्छा, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जनरली वाटर अप्लाई किया गया हाथों के ऊपर, फिर उसके बाद हाथों को कैसे रब किया जाता है, फिर उस पर सॉप अप्लाई करना है। सॉप खासतौर पर लिक्विड सॉप होना चाहिए जैसे मैंने पहले बताया है, ठीक है। किस तरीके से फिर आपने इंटरलेस्ड वे में फिंगर्स को आपस में रब करना है, और पाम्स को कैसे आपने रब करना है, इस तरीके से करना है कि हर जंक्शन जो ना वो उनका आपस में रब हो, हर जंक्शन और हर जोड़ हर पोर अंदर से साफ हो, ताकि जो भी बैक्टीरिया है या जर्म्स हैं या डस्ट डर्ट वगैरह वो इजीली क्लीन हो जाए। अब टिप्स ऑफ फिंगर्स को रब करने का मकसद ये होगा कि आपके नाखूनों की भी सफाई हो जाएगी, टिप्स और टोज की भी सफाई हो जाएगी अच्छे तरीके से। अब इस स्टेप में 11 में आप देखेंगे किस तरीके से टैप को बंद करना है। ये नहीं कि दोबारा हम हाथ से बंद करेंगे, अगर हाथ से बंद करेंगे क्योंकि हमने पहले गंदे हाथों से उसको खोला भी तो है, वहां पे रिकंटेमिनेशन के चांसेस होंगे। ये 12 स्टेप्स हैं जिनको हमने 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करना है। ओके जी, अब हम पेस्ट कंट्रोल के बारे में देखते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को हमने फॉलो करना है। अब सैनिटेशन का प्लान जो है ना वो हमने डिज़ाइन करना है, वो जैसे मैंने शेड्यूल आपको बताया है कि डेली बेसिस पे, फिर वीकली बेसिस पे, फिर मंथली बेसिस पे, इसी तरह बाई एनुअल बेसिस पे और एनुअली, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस प्लान को डिज़ाइन कर सकते हैं। हाउएवर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बड़ी है कि जो स्टोरेज में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, लाइक हैंड वॉशिंग सोप है, जो डिश वॉशिंग सोप है, या कुटमन की वॉशिंग के लिए लाई सोल्यूशन है, या अदर केमिकल्स हैं जो नॉन फूड ग्रेड हैं जिनका पॉइजनस इफेक्ट हो सकता है, उनको लॉक में होना चाहिए और अंडर दी सुपरविजन और अंडर दी लॉक सिस्टम, वो मतलब एक साइड पे होने चाहिए, ताकि जब इनको इस्तेमाल करना है तो वो किसी सुपरवाइजर की इजाज़त से इनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डेफिनेटली वो भी फूड सेफ्टी और क्वालिटी का एक कंसर्न है, जिसमें
कुछ पर्सनल बिहेवियर्स आ जाते हैं कि उन केमिकल्स का गलत इस्तेमाल हो सकता है किसी न किसी वे में, तो वो एक लॉक में होने चाहिए और सुपरवाइज़र की इजाज़त से इनको यूज़ करना है। ठीक है, अब फैसिलिटीज़ की बात ऑलरेडी हो चुकी है, स्क्रीन्स, डोर्स, ड्रेन्स, लाइट्स, टॉयलेट्स और इसी तरह अलहदा से लॉक फैसिलिटीज़, कबर्ड फैसिलिटीज़ वर्कर्स के लिए होनी चाहिए, जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वर्कर्स की वो वहाँ पे उतार के रख सकें। मतलब ये एक वर्कर काम पे आता है, डेफिनेटली उन्हें कोई अंगूठी पहनी है, कोई की चेन, कोई रिंग पहनी है, तो वो ऐसे ना हो कि आँख बचा के जेब में डाल के प्रोसेसिंग हॉल में जा रहा है, नहीं, बल्कि वो क्या है उतार के अपनी कबर्ड में लॉक में रख के जाए, ताकि उसको इस चीज़ की श्योर भी हो कि मेरी रिंग कहीं घूमेगी नहीं, उसकी बजाय वो है जेब में उठा के इधर उधर छुपा के लेके जा रहा है, फिर वहाँ पे फूड सेफ्टी या क्वालिटी से रिलेटेड कोई ना कोई कंसर्न बढ़ सकता है। लिहाजा यहाँ पे पर्सनल लॉकर्स और टॉयलेट्स की फैसिलिटी इस मामले में इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, वाटर की क्वालिटी के बारे में भी बात हो चुकी है, रिकॉल के बारे में भी बात हो चुकी है। अब हम हैसअप के बारे में बात करेंगे कि हैसअप सिस्टम कैसे अप्लाई करना है। हैसअप, जैसा कि all you people know about HACCP, that HACCP is a hazard analysis critical control point। तो हैसअप के 7 प्रिंसिपल्स हैं। हैसअप एक तो ख़ास तौर पर बात ये समझने वाली है कि फ्रॉम फार्म टू फोक अप्लाई होता है। फार्म टू फोक मीन्स रॉ मटेरियल की प्राइमरी प्रोडक्शन से लेके फाइनल प्रोसेसिंग और पैकेजिंग और इसी तरह से जो प्रोडक्ट की डिस्पैच है, वेयर हाउसिंग है, सभी स्टेप्स पे हैसअप को हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करना कंपल्सरी है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हैसअप को चलो हम प्रोसेसिंग में अप्लाई करें और रॉ मटेरियल की सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट पे अप्लाई ना करें, फिर हैसअप को हम ट्रू सेंस में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हैसअप को इम्प्लीमेंट करना है तो डेफिनेटली हमें फार्म टू फोक अप्रोच को थ्रू आउट दैट फूड चेन हम उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हैसअप के 7 प्रिंसिपल हैं। सभी लोग जैसे जानते हैं कि हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, क्रिटिकल लिमिट्स, मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, करेक्टिव एक्शंस, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग, देन वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़। सो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन इनको जो ना वो देखते हैं। हैजर्ड एनालिसिस में सबसे पहले हमें देखना होता है कि हैजर्ड है क्या, कौन सा हैजर्ड है। बेसिकली हैसअप डील किस चीज़ को करता है? हैसअप डील करता है मुख्तलिफ किस्म के फूड सेफ्टी से रिलेटेड हैजर्ड्स को, ऐसे हैजर्ड्स जिनकी वजह से फूड सेफ्टी का कोई ना कोई इशू जनरेट हो सकता है। लाइक वो हैजर्ड्स 3 किस्म के हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल। बायोलॉजिकल में क्या है, हमारी फूड प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग के दौरान या प्रोसेसिंग से पहले बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, वायरल कंटेमिनेशन या अदर माइक्रोब्स के साथ कंटेमिनेशन हो सकती है। ठीक है, जैसे मिल्क की एग्जांपल में हम देखें, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोसेसिंग से पहले प्रोडक्शन की बात करें, तो उसमें क्या है, दूध की जो प्रोडक्शन है, मिल्क की जब वो मिल्किंग करते हैं ग्वाले, तो वहाँ पे क्या है, हाथों से जरासीम की कंटेमिनेशन दूध के अंदर हो सकती है। ठीक है, या मुख्तलिफ किस्म के बर्तन हैं, दीगर आलात हैं, मिल्किंग मशीन हैं या और रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं जिनसे मिल्क कम्स इन कांटेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वहाँ से माइक्रोबियल या अदर कंटेमिनेशन, फिजिकल या केमिकल कंटेमिनेशन भी वहाँ पे हो सकती है। इसी तरीके से फूड प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन में केमिकल कंटेमिनेशन भी हो सकती है। लाइक फील्ड की बात करें तो वहाँ पे पेस्टिसाइड रेजिड्यूज की स्प्रे की जाती है, फर्टिलाइजर्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, ठीक है, इनकी कंटेमिनेशन हो सकती है। फिर फिजिकल में क्या है, प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के दौरान मुख्तलिफ रॉक्स अंदर ऐड हो सकती हैं, ग्लास पीसेज हैं, मेटल पीसेज हैं, वुड पीसेज हैं, हेयर आपका गिर सकता है। वर्कर ने अगर प्रॉपरली हाइजीनिक वे में काम नहीं कर रहा तो उसका बाल कंटेमिनेट कर सकता है। वो प्रोडक्ट के ऊपर छींक मार दे तो प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर देगा, अपने गंदे हाथों से वो क्रॉस कंटेमिनेट कर देगा प्रोडक्ट के, या और कई सोर्सेज हो सकते हैं। सो बेसिकली 3 किस्म के हैजर्ड्स हैं जिनसे प्रोडक्ट कंटेमिनेट होती है। तो हैजर्ड की स्टडी में सबसे पहले हम हैजर्ड का एनालिसिस करते हैं कि हैजर्ड किस किस्म का है, उसका हम खोज लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर फर्दर हैजर्ड का दूसरा प्लान जो ना वो उसको हम अप्लाई करते हैं। अब हैजर्ड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आता है उस हैजर्ड के अगेंस्ट हमने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, उस पर चेक एंड बैलेंस लगाना है कि किस दर्जे तक, किस हद तक ये हैजर्ड जो है ना वो इस प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर रहा है, और उस पर फिर फर्दर हम चेक एंड बैलेंस किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इसको हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं। मतलब
फॉर एग्जांपल साल्ट की प्रोसेसिंग में हम देखते हैं कि हैज़र्ड क्या है। जब साल्ट को रॉक से हासिल करते हैं तो एक्सप्लोजन के थ्रू एक्सप्लोसिव मटेरियल से हम हासिल करते हैं। वहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल क्योंकि एक नॉन फूड ग्रेड आइटम है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के अंदर उसको कंटेमिनेट कर देती है। अब ये एक क्या है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, एक हैज़र्ड है। यहाँ पे हमने एक सीसीपी नंबर 1 लगाया, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट नंबर 1। अब उस चीज़ को, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को हम रोक तो नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे उसकी मजबूरी है, उसी से हमने रॉक साल्ट हासिल करना, लेकिन वहाँ पे हम क्रिटिकल लिमिट्स लगा के हम उसको अंडर सर्टन लिमिट्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ अदर कंटेमिनेशंस हैं, लाइक पानी के अंदर इकोलाई की मकदार है, क्वांटिटी है, ठीक है, उसको भी हम 100% वहाँ पे कम नहीं कर सकते, लेकिन अंडर सर्टन लिमिट्स हम लेके आ सकते हैं, जिसको हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के साथ डेजिग्नेट करेंगे और उसकी क्रिटिकल लिमिट्स के साथ उसको हम डिफाइन करेंगे। तो ये क्रिटिकल लिमिट्स कौन देगा? ये वही हमारी फूड सेफ्टी की पॉलिसी क्रिटिकल लिमिट्स हमें बताएगी, जिसमें बताया गया होगा कि पानी की प्रोडक्शन के दौरान, फिल्ट्रेशन के दौरान या उसकी प्रोसेसिंग के दौरान हमने इक्वलाई का लेवल इतना रखना है, ठीक है। वो फूड सेफ्टी पॉलिसी ने हमें एक रोड मैप दिया, उस रोड मैप के तहत हमने इसको फर्दर अप्लाई किया। तो ये जो क्रिटिकल लिमिट्स हैं, इसमें हम सभी स्टैंडर्ड्स को विद एक्यूरेट रीडिंग्स हम उनको उस तरीके से अडॉप्ट करते हैं। लाइक ये क्रिटिकल लिमिट्स देता कौन है, पॉलिसी कहाँ से आती है? वही हमारी जो लोकल फूड अथॉरिटीज़ हैं वो देंगी, या जो हैसप का प्रिंसिपल है वो हमें देगा, या हैसप में जो फर्दर आईएसओ का स्टैंडर्ड है, या जो कोडेक्स से मुख्तलिफ रीडिंग जो ली जाती है, वो सारे स्टैंडर्ड्स हमें ये लिमिट्स देते हैं। या कुछ हमारी लोकल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, फूड अथॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल, पीसी अथॉरिटी है, पीएसक्यूसी है, ठीक है, वो सारे ये लिमिट्स हमें देती हैं। फिर उस क्रिटिकल लिमिट को चेक करने के लिए कि क्या हमने जो चेक मार्क क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट लगाया उसके अगेंस्ट जो क्रिटिकल लिमिट्स हमने डिफाइन की हैं, हम उन क्रिटिकल लिमिट्स को मतलब फॉलो कर रहे हैं, उनसे हम अबाइड बाय तो नहीं कर रहे, हमारा सिस्टम उनसे अब तो नहीं जा रहा, क्या सिस्टम में डोजिंग सेम वे में हो रही है, ठीक है। तो उस पर फिर हम ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स लगाते हैं मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स के तहत, ठीक है, चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हैं। फिर अगर उस क्रिटिकल लिमिट से डेविएशन हो रही हो तो उसको, डेविएशन को कंट्रोल करने के लिए हम उस पर करेक्टिव एक्शन अडॉप्ट करते हैं कि किस मेथड के ज़रिए हम इस चीज़ में करेक्शन लेके आएंगे, किस तरीके से हम उसको करेक्ट करेंगे। लाइक वो इमीडिएट भी हो सकती है और प्रिवेंशन मोड यानी कि रूट काज एनालिसिस भी वहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ में वेरीफाई दैट इट वर्क्स ऑन गोइंग और उसकी रीअसेसमेंट की जाती है। फिर रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हर स्टेप पे, हर स्टेज पे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ज़रूरी है। वो हर किस्म के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग से रिलेटेड, प्राइमरी प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, प्रोसेसिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड हो सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ प्लानिंग हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, एसओपीज हो सकते हैं, मुख्तलिफ जो है ना वो परफॉर्मेंस वाला फिल करना है, लाइक रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, रॉ मटेरियल के बाद उसकी जनरल प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में मुख्तलिफ स्टेजेस हो सकते हैं, मुख्तलिफ एसओपीज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कीपिंग में लेके आते हैं। तो पार्टिसिपेंट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मतलब क्योंकि हम जनरल डिस्कशन मोड में हम ये सारी जो ना वो ट्रेनिंग का हमारा जो मॉड्यूल है ना वो डिस्कशन बेस्ड है, तो आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम मतलब बात कर रहे थे हैसअप के मतलब। अब हैसअप की क्योंकि जो ना वो इम्प्लीमेंटेशन में दो मॉड्यूल्स को हम फॉलो करते हैं। मॉड्यूल्स आई मीन टू से कि दो मेथड्स हैं हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन में, एक जिसको हम मॉड्यूल 1 बोलते हैं और दूसरा मॉड्यूल 2 है।
मॉड्यूल 2 में हम बात करते हैं हैसब की, जो मैनेजमेंट लेवल पे कमिटमेंट वो उसको शो करता है, ठीक है। और मॉड्यूल 2 में हैसब की जनरल जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसकी जो मुख्तलिफ जो है ना ऐसे पैरामीटर्स की जिस पे हम फर्दर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। लाइक उसके एसओपीज हैं, उसमें प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स हैं। प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स में जना आ जाती है बात, जो भी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों की बात आ जाती है। तो ओवरऑल जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो फूड सेफ्टी, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पहले पढ़ा है कि एश्योरेंस दैट फूड विल नॉट कॉज हार्म टू द कंज्यूमर व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड owing to its intended use। उसके इंटेंडेड यूज के अकॉर्डिंगली हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो फूड वो कल का फूड कंज्यूमर की हेल्थ को हार्म क्रिएट नहीं करेगा। हैसब भी बेसिकली इन्हीं गाइडलाइंस पे एक हमें प्लान डेवलप करके देता है, जिसमें हम बेसिकली ये चीज़ असेस करते हैं कि किस तरीके से फूड सेफ्टी प्लान को हमने इम्प्लीमेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू हैजर्ड एनालिसिस स्टडी। तो हैसब बुनियादी तौर पे क्या है, हैजर्ड एनालिसिस बेस्ड है, ठीक है जी। तो होप सो कि इन सारी चीज़ों को हम इन ट्रू सेंस इसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो फर्दर जब हम रिकॉर्ड कीपिंग की बात करते हैं तो इसमें फ्रॉम ए टू जी, आई मीन टू से फ्रॉम फार्म टू फोक, जितने भी प्राइमरी प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड या प्रोसेसिंग है उससे रिलेटेड तमाम पैरामीटर्स की रिकॉर्ड कीपिंग रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब रिकॉर्ड कीपिंग के बाद जब आती है तो उसके लिए हमारे पास एक फूड सेफ्टी मैनुअल होना ज़रूरी है, या हमें खुद से फूड सेफ्टी का मैनुअल डेवलप करना ज़रूरी है, जिसको हम ऑन द स्पॉट फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी मैनुअल, एक एग्जांपल की हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि फूड सेफ्टी मैनुअल में हमें मेंशन करना है कि फूड सेफ्टी मैनेजर या फूड सेफ्टी टीम लीडर कौन है, ठीक है, कौन सा वो सिस्टम फॉलो करेगा, लाइक हैसअप फॉलो करेगा या आईएसओ या एफएसएससी 22000 फॉलो करेगा, या जनरल फूड सेफ्टी की लोकल गाइडलाइंस को, रेगुलेटरी बॉडीज की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, ठीक है। अब फूड सेफ्टी मैनुअल के अंदर हमने मेंशन क्या करना है, नंबर 1 पे फॉर एग्जांपल लिखेंगे हम, ऑल एम्प्लॉयज एंड ऑल विजिटर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तमाम स्टाफ और तमाम जो भी विजिटर्स हैं वो फूड सेफ्टी, सैनिटेशन और हाइजीन की प्रैक्टिसेस को ट्रू सेंस में फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंडस्ट्री है, आपने देखा होगा अक्सर जो मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो अच्छी लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फूड सेफ्टी को ट्रू सेंस में फॉलो करती हैं। अगर आप कभी इंडस्ट्री विजिट करने का इत्तेफाक हुआ हो तो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, जब आप एज अ विजिटर इंडस्ट्री में जाते हैं, प्रोसेसिंग हॉल में जाते हैं, अब पहले तो ये कि आप पे रिस्ट्रिक्शन काफ़ी होती हैं कि इंडस्ट्री का जो प्रोसेसिंग हॉल है उसको विजिट नहीं कर सकते। हाउएवर आपने अगर विजिट करना है विद स्पेशल परमिशन, आपको ये अलाउ किया गया है, तो फिर क्या है, आप उनके सभी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग हॉल के मेन गेट पे मेंशन होता है कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। मकसद क्या है कि हमने फूड सेफ्टी को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करना है, जो भी फूड सेफ्टी की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको फॉलो करना है, फूड सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं उनको ट्रू सेंस में फॉलो करना है। अब विजिटर जब एंटर होगा तो क्या है, वो आपको अपने शूज़ स्पेशल देंगे, आपको स्पेशल एक कोट देंगे, स्पेशल हेयर नेट देंगे, कैप देंगे, वाइजर देंगे, बियर्ड नेट देंगे, ग्लव्स देंगे आपको, और उससे पहले आपको कहेंगे कि आप अपने हाथ धोएं। एक हैंड वॉशिंग यूनिट होता है उधर
ओके, तो आपको मतलब स्पेशल जो भी उनकी यूनिफॉर्म है, जो भी उनके प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, एसओपीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, हैंड वॉशिंग करनी पड़ेगी, हेयर्स को प्रॉपर कवर करना पड़ेगा। सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करके फिर वो आपको प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग हॉल तक असेस देंगे। मकसद क्या है कि फूड सेफ्टी को मैक्सिमम इंश्योर करना है, जो भी कंटेमिनेंट्स हैं, जो क्रॉस कंटेमिनेशन है, उसको अवॉइड करना है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ आपने नोट की होगी, तो उसमें जब आप प्रोसेसिंग हॉल में एंटर होते हैं तो वहाँ पे स्टेप के ऊपर पानी फ्लो कर रहा होता है, आपको उस पानी में से गुजरना है। मकसद क्या है, आपके शूज़ तक नीचे से वॉश हो जाएं। फिर इसी तरह एयर कर्टन्स वहाँ पे मौजूद हैं कि आपने उस हाई डेंसिटी प्रेशर एयर के अंदर से गुजरना है ताकि आप ओवरऑल नीट एंड क्लीन हो जाएं, या कोई बाहर से मॉस्किटो मच्छर वगैरह अंदर या जो फ्लाइज हैं वो अंदर ना आ सकें। मकसद एक ही है कि फूड सेफ्टी को मैक्सिमम इंश्योर करना है। देन दूसरी बात इसमें ये है कि जो ना स्मोकिंग, गम च्यूइंग एंड ईटिंग आर नॉट अलाउड वेयर प्रोडक्ट इज स्टोर्ड और हैंडल्ड। ये हम फूड सेफ्टी मैनुअल की बात कर रहे हैं, जिसमें तमाम गाइडलाइंस होंगी वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, फूड सेफ्टी मैनेजर्स, तमाम जितने भी रेलिवेंट स्टाफ हैं उनके लिए, ठीक है, या जनरल विजिटर्स के लिए। Are not allowed where product is stored or handled. Workers and visitors with the diarrheal diseases or symptoms of other infectious diseases are prohibited and handling from handling fresh uh, produce. Workers and visitors are instructed to seek prompt treatment of clean first aid supplies for cuts, abrasions, and other injuries. Workers and visitors are prohibited from bringing personal items into the handling or storage area. Workers and visitors must report any illness or accidents to a supervisor or to a management. Clean drinking water is available to all workers, and water quality is tested once a year, and records are kept. All employees are taught to wash their hands by following these procedure. फिर वो सारा प्रोसीजर भी इसमें मेंशन किया गया होगा, किस प्रोसीजर को फॉलो करते हो, अपने हाथों को कैसे धोना है, करनी है। सो हैंड वॉशिंग की हम बात कर रहे थे कि ऑल एम्प्लॉयज आर टॉट to wash their hands by following this procedure. Wash their hands with warm water, apply soap and working up a leather. Okay, then rub hands together for at least 20 or 30 seconds. Then clean under the fingernails and between the fingernails. Rub the fingernails of each hand in suds on palm of opposite hand. Dry hands with a single-use towel or tissue. Okay, then all toilets and restrooms are serviced and cleaned on a daily basis, and logs are kept. All conveyances are inspected at the time of arrival. Conveyances are required to be clean, in good physical condition, and free from obvious objectionable odors, dirt, and or debris at time of loading. The facility is clean and maintained in an orderly manner. Refrigerated rooms are monitored for temperature, and logs are maintained. Okay, then measures are taken to exclude animals or pests from the facility. There is an established pest control program for the facility, जिसको हम normally integrated pest management बोलते हैं, IPM, वो apply होना ज़रूरी है। Then service reports for the pest control programs are available for review. All recall program is in place and a mock recall is done every 6 months. ठीक है, अब ये तो फूड सेफ्टी मैनुअल की बात होगी, इसमें ये चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं। इसके अलावा और जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं वो भी हम, इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी हम वर्कर्स के लिए, स्टाफ के लिए ऐड कर सकते हैं। तमाम SOPs, प्रोसीजर्स, डिटेल्ड और लेंथी और शॉर्ट, जो भी मतलब हमारे पास एज पर आवर कंपनी पॉलिसी जो चीज़ें हैं वो हम फूड सेफ्टी मैनुअल में ऐड करके सभी के लिए इजी एक्सेस में ये हम दे सकते हैं, या मुख्तलिफ जगहों पे हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं ताकि आते जाते सभी लोग, वर्कर्स इस चीज़ को फॉलो करें, इसको पढ़ के। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, हमारे पास एक कुछ पर्सनल हाइजीन चेकलिस्ट हैं। हम उन चेकलिस्ट की बात करते हैं कि कौन कौन सी चेकलिस्ट हम डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें एक चेकलिस्ट हमारे पास है हैंड वॉशिंग की, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। या पर्सनल हाइजीन की चेकलिस्ट है हमारे पास। अब पर्सनल हाइजीन चेकलिस्ट हम इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सेल की एक शीट बना के उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एम्प्लॉयज़ के नेम हों, फिर शिफ्ट वाइज इसको मार्क करना और डेट वाइज। ठीक है, इसका टाइटल होना चाहिए पर्सनल हाइजीन चेकलिस्ट।
पर्सनल हाइजीन के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और उनके अगेंस्ट कन्फर्मेंस और नॉन कन्फर्मेंस को मेंशन करेंगे। लाइक हैंड वॉशिंग, शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले आपके सभी वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि वो हैंड वॉशिंग करें, ठीक है। अगर उन्होंने हैंड वॉशिंग की है, एक सुपरवाइजर है जिन्होंने इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है, तो वो सभी वर्कर्स के हाथों को चेक करके इस चीज़ को कंप्लाई करेगा कि हैंड वॉशिंग की है या नहीं। इसको हम टिक या क्रॉस के साथ भी मार्क कर सकते हैं, या कन्फर्मेंस या नॉन कन्फर्मेंस सी और एन सी के साथ भी हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है, इस ब्लैंक एरिया में। फिर इसी तरह नेल्स कटे हुए हैं तो यहाँ पे मेंशन करेंगे शेव या कटिंग का स्टेटस क्या, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। वूंड्स या कट्स तो नहीं है बॉडी के ऊपर, वो मेंशन करेंगे। कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन हेल्थ स्टेटस क्या है, जनरल हेल्थ स्टेटस क्या है, फिर यूनिफॉर्म या एप्रन पहनना है या नहीं, फिर हेयर नेट या कैप पहनी है या नहीं, ज्वेलरी वाला तो नहीं पहनी हुई, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। शूज़ वाला नहीं पहने या व्हाट्सएवर, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह हम इसको जो भी सुपरवाइज़र या मैनेजर इस चीज़ को फिल करने का रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने रिमार्क्स यहाँ पे देगा, लिखेगा कि जी फॉर एग्जांपल ए वर्कर के हाथ धुलवाए गए, उसके नाखून कटवाए गए, उसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं थी, यूनिफॉर्म प्रॉपर करवाई गई, उसकी शेविंग प्रॉपर नहीं थी, मतलब जो भी पैरामीटर्स हैं वो अपने रिमार्क्स यहाँ पे देगा, ठीक है। करेक्टिव एक्शन क्या लिया गया ये भी यहाँ पे मेंशन करेगा, फिर अपने वो सिग्नेचर्स के साथ और स्टैम्प के साथ इसको मार्क करेगा, और ये प्रॉपर एक कंपनी का रिकॉर्ड बन जाएगा। तो इसी तरह के 101 किस्म के और रिकॉर्ड्स भी हैं जो हर स्टेप पे, हर स्टेज पे हमने फुलफिल करने हैं। हाउएवर ये पर्सनल हाइजीन का पैरामीटर है। इसी तरीके से हैंड वॉशिंग का जो है ना पैरामीटर, वो हम इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसका टाइटल होगा हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन चेकलिस्ट। एम्प्लॉयज़ के नाम है उसी तरह पे लेफ्ट हैंड साइड पे, देन शिफ्ट और डेट वाइज को मार्क किया जाएगा। अब फूड सेफ्टी का असूल ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो फूड फैसिलिटी पे काम करता है वो कम अज़ कम 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद अपने हाथों को वॉश करेगा, ठीक है, विद प्रॉपर प्रोसीजर एंड एसओपी, ठीक है। तो 2 घंटे के बाद हाथ धोना ज़रूरी है, चाहे वो उस एरिया में कोई काम पर सर अंजाम दे रहा है या नहीं। 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद उसने अपने हाथों को लाजमी तौर पे धोना है, ये फूड सेफ्टी का असूल कहता है। लिहाजा हम अपने इस फॉर्म को, परफॉर्मा को हर 2-2 घंटे के बाद मार्क करेंगे। लाइक 10 बजे अगर शिफ्ट स्टार्ट होती है तो 10 से 12, फिर 12 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, फिर 8, 10, 12, 2, इसी तरीके से हम 2-2 घंटे के फ़र्क से इसको हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट 10 बजे स्टार्ट हुई है, उस वर्कर ने, ए वर्कर ने 10 बजे हाथ धोए थे, यहाँ पे हम कन्फर्मेंस शो करेंगे। 12 बजे फिर हाथ धोए, कन्फर्मेंस शो करेंगे। 2 बजे हाथ नहीं धोए, नॉन कन्फर्मेंस शो करेंगे। इसी तरीके से सारे फॉर्म को हम परफॉर्मा को फिल करेंगे। नीचे फिर उसी तरीके से रिमार्क्स और करेक्टिव एक्शन क्या लिए गए, फिर सिग्नेचर और साइन के साथ इसको स्टैम्प किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बुनियादी परफॉर्मा है जिसको फिल अप करना है, जो पर्सनल हाइजीन और हैंड सैनिटाइजेशन को डील करता है। सो इसी तरीके से फूड सेफ्टी मैनुअल के अंदर भी ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, जो जो फूड सेफ्टी और हाइजीन के पैरामीटर्स हैं, जो जो फॉलो करने हैं, और उसका टाइटल होना चाहिए फूड सेफ्टी मैनुअल, ठीक है जी। जैसे मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ जगहों पे ये इसको डिस्प्ले करना है, प्रोडक्शन एरिया में, क्वालिटी लैब के अंदर, प्रोसेसिंग हॉल में, रॉ मटेरियल रिसीविंग जहाँ पे हो रही है, हर रेलिवेंट एरिया में इसको डिस्प्ले करना है ताकि आते जाते लोग इसको स्टडी करें, इस पर अमल करें, ठीक है। या फिर मुख्तलिफ जगहों पे फूड इंडस्ट्री में जो अपने मुख्तलिफ साइंस लगाने हैं, लाइक हाथ धोने का साइन, सिगरेट से मना किए जाने का साइन, ठीक है, तंबाकू नोशी से मना किए जाने का साइन है, फिर शूज़ पहनने का साइन है, ठीक है, नो स्पिटिंग का साइन है, थूकना नहीं जगह जगह, इसके साइन डिस्प्ले होने चाहिए। तो जो भी अदर फूड सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उनको हमने इस तरीके से विद साइंस हमने इनको मेंशन करना है ताकि आते जाते, गुजरते, उठते बैठते लोगों की इस पर नज़र पड़े और वो चाहते ना चाहते भी इस चीज़ को फॉलो करें। सो ये हमारी जनरल डिस्कशन थी आज की इस ट्रेनिंग के बारे में, जिसमें हमने ए टू जी तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ के बारे में डिस्कशन की है कि एक्चुअल वे में हम इंडस्ट्री में किस तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, किस तरीके से हम फूड सेफ्टी की बेसिक प्लानिंग करेंगे ताकि हम एक प्लान
डिज़ाइन कर सकें किसी भी इंडस्ट्री में। अब ये हमने इसमें कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात नहीं की, बल्कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं सभी को जनरलाइज्ड वे में डिस्कस किया, ताकि हम ये सारी इंस्ट्रक्शंस किसी भी इंडस्ट्री में फॉलो की जा सकती हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लाइक डेयरी इंडस्ट्री है, साल्ट इंडस्ट्री है, बीफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जूस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, या रेस्टोरेंट लाइन है, किसी भी जगह पे इन सभी इंस्ट्रक्शन को हम एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेनिंग।